السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزوں، ایک بہت ہی پیارا بیان آپ لوگ ضرور سنیں، مفتی سلمان اظہری کا بہت ہی پیارا بیان آپ لوگ ضرور سنیں۔ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں۔ قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں۔ 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے، اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے۔ ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئیں، گھروں کے حالات خراب ہو گئے۔ کتنے ایسے ہیں؟ ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا۔ آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے۔ قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں۔ ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزوں۔ اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو۔ میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں، نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر۔ بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے۔ جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے۔ گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے۔ کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا۔ کہا جاؤ تم۔ وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی۔ وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا، اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے، لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ناسور ہے وہ کینسر کی طرح، کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے۔
तुम्हारी बेटियों तक भी वो हरकतें आएंगी, तुम्हारे बेटे भी महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए जिम्मेदारियों का एहसास सारे लोग मिलकर के करें, एक आदमी नहीं। ये बेचारा खतीब कब तक यहां से पुकारेगा, एक कोई मुबल्लिग कब तक इस्लाह करेगा, हर एक की जिम्मेदारी है। आज गलती किसकी है पता है? पूरे मोहल्ले में 5% या 10% जुआरी होते हैं, 5% से भी कम होते हैं जुआरी और सूदखोर या शराबी या जानी। अक्सरियत तो अच्छे लोगों की होती है, लेकिन वो अच्छे लोग इतने भयानक होते हैं, याद रखना। इन 5 को जिन्होंने खुली छूट दी थी, ये 95 लोगों की भी वही सजा होगी जो उस जुआरी की सजा होगी, क्योंकि माशरे को बर्बाद करने में उन 5 लोगों का हाथ कम था, खामोश रहने वालों का हाथ ज्यादा था। ये सपोर्टर थे, गुनाह देख करके हंसते हुए चले जाते थे, मेरे घर में थोड़ी ना हो रहा है, फलां का बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं तो संभाल लूंगा अपना घर। मियां आग लगी है, तुम क्या संभाल लोगे? तुम्हारे भी घर के दरवाजे लकड़ी के हैं, तुम्हारे भी घर की खिड़कियां लकड़ी की हैं। वो आग के शोले जब निकल करके आएंगे तुम्हारे दरवाजे भी जलाएंगे। यही हाल है आज हमारे घरों में। तुम्हारी बेटियां भी हैं या नहीं? तुम्हारे अपने बेटे हैं या नहीं? दूसरे का बेटा बिगड़ गया, दूसरे की बेटी बिगड़ गई, तो आप हंसकर तमाशा देख रहे हो कि फला नशा कर रहा है। पहले हाल ये थे कि हमारी जमात के लोग कहीं बैठे होते थे तो आवारा लोग उनके सामने से गुजरने में भी डरते थे, गुजरने में उन्हें डर लगता था कि बड़े लोग बैठे हुए हैं। आज वो वकार खत्म क्यों होता गया? अपनी जिम्मेदारी का एहसास जब बंदा खत्म कर लेता है, तो इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना हो जाती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले ये खत्म हो जाती है, तब जाकर के कौम के अंदर बदकारियां फैल जाती हैं, ये ज़बू हाली का शिकार होती। आज कौम के अंदर जो मामलात है, हम गिरे हुए इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बोलेगा तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे, दूसरा उठेगा उसको पकड़कर बंद करेंगे, और सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह की बुज़दिली से तुम कितने साल जी सकते हो, चुप चुप रह करके, बुराइयों के बारे में नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज करके जियोगे, कब तक रहोगे? मौत तो आनी है, नजर जो पड़ती है तो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की वहां तीर चला देता है। हक बात करो, लोगों की भाग गया, ये जरूरी नहीं कि वो इंसान ही है, वो शैतान भी होता है। शैतान कोई लंबे सींग वाला, बड़ी पूंछ वाला, पर वाला नहीं है कि ऐसी शक्ल में आएगा तब तुम डर के भागोगी। शैतान तो एक अच्छे नौजवान की शक्ल में भी आता है, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आता है, और मर्दों के पास खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में आता है। जब ये बहक जाते हैं, गुनाह कर लेते हैं, तब चला जाता है, भाग जाता है, अच्छे अच्छे परहेजगारों की शक्ल में आ जाता है और तुम्हारे ईमान का सौदा करने लग जाता है। मेरे अजीजों, बनी इसराइल की वो हिकायत मुझे याद आती है जिसमें उसने एक बड़े आबिद का तकवा भस्म कर दिया। बहुत बड़ा आबिद नेक, अपने सौमा से निकलता नहीं था। सौमा उसको कहते हैं जहां इबादत करने की जगह होती थी पहले बनी इसराइल में, उसके बाहर वो कभी नहीं निकलता था। 4 भाई थे, एक बहन थी करीब में। वो चारों भाई तिजारत के लिए जा रहे थे, बहन अकेली घर में थी। कहा किसके हवाले करके जाएंगे? तो उस आबिद, उस परहेजगार शख्स के पास आए चारों भाई, कहा हम अपनी बहन को छोड़ जा रहे हैं, आप सिर्फ ख्याल रखना, आप नजर रखना। उसने कहा हाँ ठीक है। वो चले गए। नजर रखने वाला आबिद, नजर रखने वाला आबिद निकलता नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग आए, वो बुजुर्ग यही इबलीस लईन है। आकर के उसने दरवाजे पर कहा कि तेरे भरोसे एक नौजवान लड़की को छोड़ गए हैं, वो घर में बेचारी अकेली पक रही होती है और बहुत ज्यादा उकता जाती है, कभी कभार बात तो कर लो, सो खैरियत तो पूछो। ये अपने सौमे के दरवाजे तक आया बस, और वहां से उसको पुकार करके कहा। वो लड़की अपने दरवाजे पर आई, एक दूसरे को देखा और बातचीत किया, खैर खैरियत पूछा, यहीं तक थी बात। लेकिन शैतान यहीं से अपने काम शुरू करता है। उसके बाद दूसरे दिन यह आबिद और बातचीत शुरू कर दिया। यहां से यह सिलसिला इतना बड़ा कि इसके अंदर इबादतों की जो तलब थी वो कम होने लगी। अभी अपने सौमा से निकल करके उसके घर भी जाने लगा, जा करके घंटों बातचीत करते रहे। वो वक्त भी आया जब उसने उसके साथ जिना भी कर लिया, उस एक नौजवान खातून के साथ, क्योंकि ये शादी नहीं करने वाला था। पूरी कौम के नजदीक ये निहायत आबिद है, परहेजगार है, जिना हो गया, हमल भी ठहर गया। अब क्या करे? नौजवान लड़की के साथ ऐसे मामलात हुए हैं, डरा। वही इबलीस आया फिर बुजुर्ग की शक्ल में, कहा देखो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, अगर तुम ये मालूम हो गया तो पूरी कौम तुम्हारे साथ क्या करेगी।
کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو, مار دو اور دفن کر دو, گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر, زمین صاف کر دیا. جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے, پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی, میں نے اس کو بہت علاج کیا, انتقال کر گئی, قبرستان میں دفن کیا, ایک جھوٹی قبر دکھا دیا. وہ روئے دھوئے, ہو گئی بات ختم. لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا, کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے, یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے جھوٹ بولتا ہے, تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا, حمل ٹھہرا تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا. انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا. اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو سوما سے باہر کھینچا گیا, اس کے کپڑے پھاڑے گئے, اس کے بال نوچے گئے, منہ کالا کیا گیا, پورا گاؤں ٹوٹ پڑا, اس کا سوما توڑ ڈالے, اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا. پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا. ابلیس آیا, کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری, مجھے افسوس ہے لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں, میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے. کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے. اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے, یعنی اپنے لیے. کہا کہ تو مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو مجھے سجدہ کرے گا. کہا بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی, اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی, وہ مسلمان بن جائیں گے, فلاح ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, بہت سارے میدان ہیں, میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی. ابھی چند مہینے پہلے, 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے, اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے, اور اس کے گھر گئی, سب کو چھوڑ دیا, 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو, ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے. اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا, اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی, عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے. اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ, کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا, کون ہے؟ یہ ایک باندی تھی حضرت فقیہہ. حضرت زنیرہ ایک صحابی ایسی ہیں مکہ کی, انہوں نے
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद मक्का वालों ने इतने ताने दिए इनको, इतने ताने दिए। एक वक्त ऐसा भी आया कि बीमार होकर के इनकी आंखें चली गईं। अब ताने देने वालों को और बड़ा मौका मिला, और बड़ा मौका मिला। पूरे मक्का वाले ये कहने लगे, जुनैरा देखो, लात व हुबुल और उज्जा जो हमारे खुदा हैं, इन्होंने तुझे वो क्या कहते हैं, श्राप दे दिया। ये लोग कहते हैं श्राप दे दिया, जिस तरह से भी कहते हैं कि बद्दुआ लग गई हमारे खुदाओं की, तुझे, तेरी आंखें चली गई। हजरत जुनैरा टस से मस नहीं हुई, मुस्कुराती थी और कहती थी, मेरी आंखें जिसने दिया था उसने लिया, तुम्हारे खुदाओं को तो अपने आसपास की भी खबर नहीं होती, उनकी खुद की आंखें नहीं दिखती, वो मेरी आंखें क्या लेंगे। दूसरे औरतें बहुत जल्दी इन बातों की तरफ आ जाती हैं, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हकीकत में जो कह रहे हैं कि फलां की बद्दुआ लग गई, अब शगुन हो गया, फलां हो गया। उनकी आंखें चली गई थी, तब भी वो ईमान पर कायम थी। यहाँ बच्चे रोने लग जाएं, 3-4 दिन सताने लग जाएं तो आ जाते हैं, कहा कि हजरत हमने सुना है कि इसका नाम कोई सख्त हो गया है, इसकी वजह से ये ऐसा सता रहा है, परेशान कर रहा है। पूछा नाम क्या है, कहा हुसैन है। कोई सख्त नाम है? वो औरतें भी आई जिन्होंने अपनी बच्चियों का नाम ज़ैनब रखा, कहा हजरत नाम का तो कुछ असर नहीं हो रहा है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्लामी नाम रखे हो, अंत विश्वास कहां से तुम्हारे अंदर आया है? हाँ, बुरे नाम अगर रखे हो तो फिर बदलो, लेकिन इस्लामी नाम अगर हैं तो बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। नामों से बीमारी अगर आनी होती, नामों से ही जानी होती, तो शायद सारी दुनिया वाले एक ही नाम रखते, आज एक ही नाम रखते कि हाँ जो साफ सुथरा हो, जिस नाम से कभी बीमारी नहीं आती, सारे लोग ही नाम रखते। ऐसा नहीं है, ये इस तरह की अंधी अकीदतें जो दाखिल की गई। हजरत जुनैरा इस सहाबिया से हमें मिलता, आंखें चली गई तब भी वो ईमान पर इस तरह कायम थी और कहती, मुझे ईमान लाने की वजह से आंखें नहीं गई हैं, तुम्हारे खुदाओं को आस पास का होश नहीं होता, वो मेरी आंखें क्या लेंगे। हजरत उम्मे शरीक एक सहाबिया ऐसी हैं, मक्का वालों ने, उनके खानदान वालों ने, उनके ददियाल ननिहाल दोनों खानदानों ने मिलकर के क्या किया जानते? हजरत उम्मे शरीक को कड़ी धूप में खड़ा किया, ऐसी धूप में कि जो रेतीली जमीन है, खुले मैदान में उनको खड़ा करते, और अगर वो आगे बढ़ती तो कोड़े से मारते, उसी मैदान में खड़ा करते। कितनी देर? घंटा 2 घंटा नहीं, 3 दिन तक खड़ा रखा। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से उनकी आंखें बाहर आने लग गई थी। हजरत उम्मे शरीक, ये भी सहाबियां हैं, उस कड़ी धूप में, आज मक्का की धूप जानते हैं आप 50 डिग्री के ऊपर जाती है, 50 डिग्री के ऊपर, शायद आप 35-40 डिग्री में ही परेशान हो जाते हैं। 50 डिग्री से ऊपर की धूप बर्दाश्त करती हुई गर्म रेत पर खड़ी रही 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो कहने लगे कि तू अपने खुदा को छोड़ दे, छोड़ दे। हालत ऐसी हो गई थी कि कानों में आवाज तक नहीं आ रही थी। मैंने रिवायत पढ़ा, आंखें भीग गई। हजरत उम्मे शरीक पूछने लगी क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने इशारा करके कहा, एक को जो तू मानती है खत्म कर दे। कान सुनाई नहीं दे रहे, आंखें बाहर आ चुकी हैं, जिस्म तप रहा है, पैरों में छाले पड़ गए। तब वो पुकार करके कहती अल्लाह अहद, अल्लाह अहद, अल्लाह एक ही है, एक ही है। कोड़े मार मार करके उनको जख्मी कर दिया था हजरत उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हा को। और जानते यही वो सहाबिया हैं। हजरत उम्मे सुलैम, कितनी सहाबियात की मैं बात तुम्हारे सामने रखूं। हजरत उम्मे सुलैम एक वो सहाबिया हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर आराम करने के लिए जाते थे। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप के या गर्मी से पसीने होते तो वो कतरे जमा करके रखती थी। ये हजरत अनस की माँ है जिन्होंने हुजूर के पसीने को जमा कर रखा खुशबू के लिए। और रिवायात ये बताती हैं उनकी 7 पुश्तों तक वो खुशबू आती थी। वो उम्मे सुलैम जब उनसे निकाह के लिए अबू तलहा ने पैगाम भेजा, वो ईमान लाए हुए नहीं थे, ईमान लाए हुए नहीं थी। आज के हालात के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूं, उम्मे सुलैम क्या कहती हैं, अबू तलहा को बहुत पसंद करती थी, खूबसूरत थे अबू तलहा, बहुत ही कड़ियल जवान भी, और उम्मे सुलैम उनको पसंद करती थी। निकाह हो जाए, सामने से अबू तलहा आए, उम्मे सुलैम निकाह कर लेते हैं हम। उम्मे सुलैम ने कहा मेरी पसंद अपनी जगह पर, तुम खूबसूरत हो अपनी जगह पर, तुम कड़ियल जवान हो अपनी जगह पर, मगर मेरा ईमान मेरे साथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अल्लाह को एक मानती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानती हूँ, मेरा तुम्हारे से निकाह कैसे हो सकता है? अगर तुम ईमान नहीं लाए तो हमारी जिंदगी में कभी मिलाप नहीं हो सकता। हजरत उम्मे सुलैम की दावत पर हजरत अबू तलहा ईमान लाए, और ईमान लाए तो सिर्फ निकाह के लिए नहीं लाए, हुजूर के जानिसार बन गए और अशरे मुबशरा सहाबा में दाखिल हुए। खवातीन का ये भी किरदार है अजीजा ने गिरामी, वो ऐसे नहीं कि पसंद आ गया जवान तो घर से भागकर निकल पड़ी, चाहे कहीं पर भी जाकर के शादी रचाना पड़े। माज़अल्लाह उन बच्चियों की जिंदगी पर मुझे बड़ा अफसोस होता है जिन माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके फख्र करती हैं। ये सब कहां से हो रहा है जानते हैं? ये सब इसी टेलीविजन से, इंटरनेट से और सीरियलों से। आज पूरी दुनिया मिला करके ऐसी ही चीजें दिखाना चाह रही है। मुझे
کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا, بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں. مجھے اس کی خبر نہیں تھی, لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے. اور یہ تاثر دیا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ آزاد رہو, جو تمہیں پسند ہے اس سے بھاگ جاؤ, ماں باپ راضی ہو ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے, سب برابر ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, تمہیں پتا ہے کہ یہ وہ والدین جن کی رضا میں تمہاری جنت ہے, جن کی ناراضگی میں تمہاری جہنم ہے, ماؤں کو روتا ہوا, باپ کو روتا ہوا, بلکتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے. پسند ہے کہیں سے تو پھر والدین کو راضی کیوں نہیں کر لیتے ان باتوں پر. ہاں, جہاں تک رہی بات مسلمانوں کی آپس میں, کبھی ماں باپ اگر ناراض ہو کر بیٹھتے ہیں تو وقت لگ جائے گا, منا لیں گے, اور نکاح ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ایمان بھی چھوڑ کر جا رہی ہیں. گھر چھوڑا تو چھوڑا, اور اگر کوئی جوان ایسا تھا جو اسلام کی طرف تجھے لے جاتا یا تجھے وہ اسلام میں ہی رکھتا تو الگ بات تھی. یہاں تو باضابطہ ان سانپوں کے گھروں میں جا رہی ہیں جو پورے اسلام کو ڈسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں جانے کے لیے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی لڑکیاں اس طرح جاتی ہیں تو میں کوئی خوف اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے جانے سے اسلام گھٹ جائے گا, ہرگز نہیں. اسلام کی جڑیں تحت الثری سے نیچے ہیں, اس کی شاخیں اوج ثریا کے اوپر ہیں. پوری دنیا مل کر کے ہلائے تو اسلام کا کچھ بال بیکا نہیں ہوگا. تم اپنا جہنم خریدنے جا رہی ہو, میرے اس دین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. 4 لڑکیاں چلی جائیں تو کیا اسلام میں ختم ہو جائے گا؟ یہ اس سمندر کا نام ہے جس سے چلو بھر پانی نکلنے سے سمندر کا کچھ بگڑتا نہیں, کچھ نہیں بگڑتا. ہاں, یہ جو جتنے بھی ڈھونگی ہیں, جتنے بھی پاکھنڈی ہیں, جتنے بھی سنگی ہیں, جس طرح کے یہ اعلانات علل اعلان کر کے ہمارا دل جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے مذہب سے دور کریں گے اور اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لائیں گے. باضابطہ اس پر تنظیمیں بن رہی ہیں, سنگٹن بن رہی ہیں, اور اس پر نہ پولیس کچھ کرنا چاہتی ہے نہ حکومت کچھ کرنا چاہتی, کیونکہ ان کے 1000 گناہ بھی ان کے نزدیک معاف ہیں. ہاں, اگر وہ دھرم پریورتن کریں تو یہ اصل کی طرف آنے کی بات ہوگی, اور اگر ہم تبلیغ کریں تو آتنکوادی ہو جائیں گے. ہمارے لیے دہشت گردی کا لفظ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے. اے مسلمانوں, اب صفائی دینا اور ڈیفنس کرنا چھوڑ دیں کہ ہم ایسے نہیں ویسے نہیں. یہ کون ہوتے ہیں ان کو صفائی دینے والے ہیں؟ نہ یہ ہمیں سزا دینے والے نہ جزا دینے والے. اسلام اپنی حقانیت پر کل بھی زندہ تھا, آج بھی اور ہمیشہ رہے گا, اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے, وہ ہمیں سزا اور جزا دینے والا ہے. اب یہاں پر بات یہ دگلی پالیسی کی, ہیپوکریسی جس کو کہتے ہیں, منافقت جس کو کہتے ہیں, وہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں. کیا ایسی سنگٹنوں کو نہیں کہا جاتا کہ تم یہ نفرت پھیلا رہے ہو, زہر پھیلا رہے ہو؟ اور اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کہ باضابطہ مسلمان بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا, اس پر ان کو لاکھوں کا انعام دینا کہ تم اٹھا کر کے لے آؤ, کسی کے گھر سے بچی کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ انعام دیں گے. تف ہے, لعنت ہے ایسی چیز پر کہ تم لڑکیوں کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتے ہو. ہم اپنی گردنوں سے اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہاں, یہ نیچ طریقے سے نہیں, کسی اس طرح کے ہلکے طریقے سے نہیں جو یہودی کرتے رہے, عیسائی کرتے رہے, اپنی بیٹیاں سجا سجا کر کے دیتے رہے, یا دوسروں کی لڑکیوں کے ذریعے سے گھستے رہے. اسلام اس طرح سے نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی کے پاس کئی دوشیزائیں, کئی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی, صلاح الدین ایوبی نے ایک نظر ان کی طرف نہیں دیکھا. تمہیں معلوم ہے سلطان الہند غریب نواز کے پاس 40 دن تک ایک لڑکی جاتی رہی, صرف اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائے. راجے کی بیٹی تھی, لیکن 40 دن تک اس مرد قلندر نے ایک نظر تک نہیں دیکھا. 40 دن کے بعد وہ خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. عزیزان گرامی وقار, یہ ہماری تاریخ رہی ہے. ہم کسی کے گھروں میں چھید ڈال کر کے, سوراخ مار کر کے اٹھانا نہیں چاہتے. ہاں, انشاءاللہ العزیز تم لے جانا چاہتے ہو, بہو بنانا چاہتے ہو, جس طرح کی حرکتیں پیدا کر رہے ہو, انشاءاللہ اب ہمارا پیغام عام ہوگا. دیکھنا, یہ جوان جب غلام مصطفیٰ بنے گا, ایک ایک نہیں 4 ساتھ آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ بیوی بنانے کے شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں, انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہر کوئی ضرور وارفتہ ہوگا. اس لیے کہ ہم نے تبلیغ جو کیا ہے پوری دنیا میں وہ اخلاق مصطفیٰ سے کیا ہے, دین مصطفیٰ سے کیا ہے. کل ہی میں نے وہ افغانستان کی ایک خاتون کے متعلق, افغان کی نہیں ہے, وہ انگلینڈ کی خاتون ہے, اس نے اپنا بیان نشر کیا ہے کہ وہاں کے کچھ مسلمانوں کا جو رویہ میرے ساتھ تھا, اور اس نے پورا حجاب پہن کر کے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو پھیلایا جا رہا تھا, عصمت دری کرتے ہیں, عزت لوٹتے ہیں, مگر میری عزت کی اگر کسی نے وہاں پر حفاظت کی ہے تو یہ جوان مسلمان ہی تھے جنہوں نے میری طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیا. آج سے 8 سال پہلے قریب امریکہ کی ایک رپورٹر نے بھی یہ کہا تھا, ایک وقت تھا جب نیٹو افواج میرے اوپر حملہ کر رہی تھی, وہ درندے جو برسوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں,
वो लोग मुझे तनहा पा करके, एक अखबारी नुमाइंदा रिपोर्टर थी, कह रहे हैं कि वो मुझ पर हमला करके बैठे थे, ले जाने वाले थे, लेकिन दो चंद नौजवान ऐसे आए कि मुझे छुड़ा लिया। शाम का वक्त था, लेकिन मैंने उनके चेहरे देखे, ये जवान है, मुसलमान है, और डर गई। हमारे फौजी तो ले जाते, एक रात के बाद छोड़ देते, ये तो आतंकवादी, ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे। लेकिन वो खातून कहती है, रात का वक्त हुआ, कमरे में एक जगह इन्होंने मुझे रख दिया था, रात के वक्त थोड़ा सा दरवाजा खुला और खाने का बर्तन मेरे अंदर आया, मैंने खाना खाया, मेरे कपड़े कुछ जगह से फटे हुए थे, झाड़ियां लग करके। वो कहती है कि रात के वक्त एक जोड़ा कपड़ा भी आया, दूसरे दिन नाश्ता भी आया, खाना भी आया। 2 दिन के बाद हमारे मुल्क की एम्बेसी के अफराद आए और दरवाजा खोल करके मुझे ले गए। और उसके बाद वहां एम्बेसी में जाने के बाद उस खातून से एम्बेसी के अफराद ने कहा, ये जो 2 नौजवान हैं जो तुझे खाना दे रहे हैं, जो तुझे कपड़े दिए हैं, उन्होंने आकर के हमें इत्तला दी कि तुझे तेरे मुल्क तक हिफाजत से पहुंचाया जाए। वही हमें यहां तक का पता दिए हैं। वो खातून वापस जाकर के पूरा आर्टिकल लिखती है और कहती है, दुनिया ने जो बताया वो और मुसलमान है, आंखों ने जो देखा वो और मुसलमान है। नौजवानों, आज भी तुम अखलाक़े मुस्तफ़ा से लोगों को कायल कर सकते हो, उनको अपना गर्विदा बना सकते हो। सिद्दीक़ अकबर के जमाने में वो यहूदी औरत जिसने खत लिख करके अमीरुल मोमिनीन से कहा था, मैं मदीने में रहना नहीं चाहती, मैं यमन जाना चाहती हूँ, मेरे घर वाले रिश्तेदार सब वहां हैं। खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर ने 2 जवानों को उस औरत के साथ कर दिया, ले जाओ इसे यमन तक छोड़ाओ। उसको ऊंटनी पर बिठाया, वो 2 जवान लेकर के निकलते थे। वो खातून कहती है, जगह जगह चौकियां आती थी, चेकिंग पॉइंट आते थे, लोग पूछते थे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। ये 2 जवान जवाब देते, खलीफा इस्लाम सिद्दीक़ अकबर की मेहमान है, मुल्क यमन जा रही हैं। तो फौरन चौकी खोल दी जाती, कोई ऊंट के ऊपर नजर तक नहीं उठाता था, पूरे यमन पहुंच गई। वो कहती है खातून यहूदी औरत कि पूरे हज़रत सफिया मदीना तैयबा की हिफाजत पर तन्हा ऐसी बहादुरी का किरदार अदा कर रही। यहूदी दाखिल हुए थे औरतों के दरमियान, उन्होंने खुद अपना नेजा उठा करके सरकलम कर दिया। वो मिसाली खवातीन है, वो दुबक करके बैठने वाली नहीं, बल्कि एक साहबी हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला, काफी मैंने साहबियात का जिक्र किया, उनकी बरकतें अल्लाह हमारी बच्चियों को अता करे। हज़रत खंसा एक वो सहाबियां हैं जो जंगे कादसिया में पहुंची, उनके 4 जवान बेटे थे। ये मशहूर शायरा हैं अरब की। ये ईमान लाने से पहले जब शेर व शायरी करती थी, मरसिया पढ़ने का एक तरीका था अरब में, जब कोई मर जाता तो उसके तारीफें कर करके लोगों को रुलाते थे, मरसिया कर इसको कहते हैं। तो ये मरसिया पढ़ने में मशहूर थी खंसा। उनके भाई और उसके रिश्तेदार इंतकाल किए थे ज़माने जाहिलियत में, तो मशहूर है हज़रत खंसा ने 2 साल तक अरब वालों को रुलाया अशार में। ऐसे ऐसे अशार लिखती थी कि लोग रोने लग जाते थे। और ईमान लाई, 4 बेटों को लेकर के हज़रत उमर फारूक के ज़माने में जंग कादसिया में पहुंच गई। रात के वक्त अपने पुराने अशार पढ़ने लगी, लेकिन अब बदल गए थे अशार। अपने बेटों को कहती थी, तुम्हारी माँ ने कभी बदकारी नहीं की, तुम्हारे बाप ने कभी खयानत नहीं की। ऐ जवानों, अगर तुम दीने मुस्तफ़ा के काम आ गए तो खंसा का सर बुलंद होगा। वो रात भर अशार पढ़ती रही, सुबह जब उठे जंग शुरू हुई। वो बड़ी घमासान की जंग थी। शाम से पहले पहले लोगों ने आकर के बताया हज़रत खंसा को कि तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 4। और सब में ये खबर फैल गई कि अब हज़रत खंसा कैसे कैसे अशार बयान करेंगी। भाई के मरने पर 2 साल अरब को रुलाया था, 4 बेटे मरे, अब क्या कहेगी। सब आकर के जब पूछते हैं कि खंसा 4 बेटों की लाश पर तुम क्या मरसिया पढ़ोगी, सबको जमा करती हैं और कहती हैं, मेरे गम पर और मरसिया पर अशार सुनना चाहते हो, सुनो। हर बेटे पर मैं कहती हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस्लाम में आ चुकी, ईमान लाई हूं, बेशक हम अल्लाह के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। 4 बच्चे जवान दे करके भी वो जो साबित कदम रही। अजीजा ने गिरामी, उन खवातीन पर लाखों सलाम, उनकी तुरबतों पर करोड़ों सलाम। आज अपने कौम की बच्चियों को जाते जाते ये दर्स जरूर दूंगा कि तुम टीवी सीरियल और इस तरह की भयानक जराइम की किताबें पढ़ करके अपने किरदार को आगे ना बढ़ाओ, अपनी जिंदगी को आगे ना बढ़ाओ। तुम अगर कुछ देख करके आगे बढ़ना चाहती हो तो सैयदा कायनात की सीरत को उठाओ, सैयदा खदीजतुल कुबरा की सीरत उठाओ। इंटरनेट तुम्हारे हाथ में भी है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में भी है, कभी ये सर्च करके क्यों नहीं देखती इस्लाम में खवातीन का क्या किरदार है, इस्लाम में औरतों की क्या कुर्बानियां हैं। ये भी तो जरा पढ़ो, तुम्हारे जज्बे जवान होंगे। और तुम्हारे जज्बे जिस वक्त जवान होंगे, यकीनन तुम्हारी गोदों से भी हुसैन और हसन के गुलाम पैदा होंगे। औरतों के जरिए से इनकलाब आ सकता है। और हमने देखा है औरतें जब बेदार होती हैं तो हुकूमत की चौबें हिला देती हैं। हाँ, उन औरतों पर लानत जो अपने घरों से निकल करके बाजारों और सड़कों में आकर के बैनर लेकर खड़ी हो गई, हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये बैनर लेकर के घूम रही है। तो लानत है, तुम सिर्फ अपना किरदार नहीं बता रही
بلکہ جس گھروں سے یہ آئی ہیں عورتیں ان کے ماں باپ پر بھی دنیا لعنت کرے گی. کیسی بچیاں تم نے جنم دی, تم اسلام پر ہو, ایمان پر ہو, اور اس طرح کا بینر اٹھائی کیسے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہندوستان کی مسلمان خواتین اب بھی اس سے محفوظ ہیں. اب تک ہمارے آزاد اس طرح کا ماحول ہونے کے باوجود بھی ابھی ہماری خواتین اس طرح سے نہیں نکلی, اللہ کبھی نہ نکالے. لیکن بچیوں کے لیے جو جال بچھائے جا رہے ہیں, جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں, اس سے میں الرٹ کرنا چاہتا ہوں. اے نوجوان بچیوں, اپنے خوابوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سپرد کر دو. عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. یہ حضور کا کرتا لے کر کے گئے اور آپ جنگل میں تھے. کہا دیکھو بھائی حضور نے بڑی باتیں کی ہیں, دیکھیں یہ بھی کچھ پہچانتے ہیں کہ نہیں. تو آپ اپنے ذکر میں مشغول تھے. حضرت عمر نے سلام کیا, آپ نے پیچھے دیکھا بھی نہیں مڑ کے, اور نام لے کر کے امیر المومنین کا جواب دے دیا. جب نام لے کر کے دیا, کہا لگتا ہے میں امیر المومنین ہوں اس لیے مجھے جانتے ہوں, علی تم کہو. پھر جب علی نے سلام کیا نا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کر کے جواب دیا. کہنے لگے تم ہی اویس ہو؟ کہا ہاں. آپ فرمانے لگے بتائیے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے آپ یہ بتائیے آپ کی ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے, آپ کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا تھا جس نے تم کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی نے مجھ کو تمہارے بارے میں بتایا ہے. کہا تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, پھر تمہیں کیسے پتا؟ کہتے تم تو حضور کے قرب میں رہے ہو نا, بتاؤ نا حضور کی یہ جو ابرو تھی یہ ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ یہ حضرت اویس پوچھ رہے ہیں. اویس کرنی کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے, حضرت علی سے. کہا چلو تم تو قربت میں رہے ہو, میں نے تو نہیں گزارا ان کے پاس وقت, تم بتاؤ میرے محبوب کی یہ ابرو کیسی تھی, ابرو کیسی تھی؟ جب اتنی بات سنی نا دونوں خاموش, اس لیے کہ یہ ایسے حیا اور ادب والے لوگ تھے, کبھی نظر بھر کے حضور کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہا ہم نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. فرمانے لگے یہ پاس رہنے کا کمال ہے, آؤ تمہیں بتاؤں. کہا جب دور سے دیکھو تو یہ ملی ہوئی لگتی تھی, اور جب قریب سے دیکھو تو دونوں ابرو جدا نظر آیا کرتی تھی. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا فرق اتنا ہے تم ظاہر میں حضور کے سامنے رہتے تھے, میں باطن میں حضور کے ساتھ رہتا تھا. اس کے بعد جب حضرت عمر نے اگلی بات کہی, یہ لے کیا ہے؟ کہا یہ حضور نے آپ کے لیے بھیجا ہے. بس خدا کی قسم پھر منظر یہ الگ تھا. اس کو سر پہ رکھا, کہنے لگے میرے لیے؟ جی آپ کے لیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کچھ بھی کہا میرے نبی نے؟ کہا میرے اویس سے کہہ دینا وہ میری امت کے لیے دعا کر دے. کہتے پھر کہو کیا کہا؟ میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. ہاں میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. اویس کرنی کی چیخ نکل گئی, میں اور میری اوقات اتنی کہ وہ اپنا کہہ کے آواز دے رہے. کہا چاہیے کیا؟ کہا حضور نے امت کی دعا کی درخواست کی کہ کہہ دے میری طرف سے میری امت کے لیے دعا کر دے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, اویس کرنی نے جبہ جو ہے رکھا زمین پہ, سجدے میں آ گئے, کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے, امت کو بخش دے. آواز آتی ہے اویس پیارے محبوب کا دیا ہوا تحفہ تو پہن لے, ہم وعدہ کرتے ہیں بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیرے محبوب کی امت بخشیں گے. کہتے نہیں مالک میں اب بھی راضی نہیں ہوں, میں تبہ تب پہنوں گا جب تو اور امت بخشے گا. آواز آتی ہے آدھی امت بخش دی ہے, اب تو پہن لے. کہتے مالک اور بخش. آواز آتی ہے اویس سر اٹھا لے, آدھی امت تیری دعا سے بخشیں گے, آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے. اللہ عرض کرتے مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آتی میری محبوب کی امت میں شہزادہ پیدا ہوگا. جس طرح نبیوں میں نے محبوب کو کمال بخشا ہے, اسی طرح میں نے ولیوں میں عبد القادر جیلانی کو کمال بخشا ہے. آدھی امت تیری دعا سے, آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشی جائے گی. مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ, قسمت والے ہیں کہ ہمیں سرکار بغداد کا دامن ملا ہے. آج بھی نا بریلی شریف سے یہی آواز آتی ہے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. پوری زندگی سرکار بغداد کی آپ پڑھ لیں. وہ میرے نبی کے جمال کا مظہر بھی ہیں, کمال کا مظہر بھی ہیں. جمال کا مظہر خدا کی قسم بے حد خوبرو, کمال کا مظہر حضور آئے, آتے ہی حضور نے سجدہ کیا. غوث پاک آئے, آتے ہی غوث پاک نے روزہ رکھا. روزہ رکھا حضور نے آتے ہی سجدہ کیا, سرکار غوث پاک نے آتے ہی روزہ رکھا. یہ حضور کے کمال کے مظہر. اور پھر عادتیں دیکھیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. معاف کیجئے گا آج ہمارے رویے بڑے لگے. ہم نا زکوٰۃ بھی رمضان کی دیتے نا, زکوٰۃ تو وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے دیتے, جبکہ وہ ہمارا نہیں ہے. زکوٰۃ ہمارا نہیں ہے, مال وہ اللہ کا جو ہم نے نکالا ہے, تو اس کو دکھانے کا تو کوئی حق ہی آپ کو نہیں پہنچتا. ہم زکوٰۃ بھی دکھا کے دیتے ہیں. بغداد والے کی زندگی پڑھیں, ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہنا. یہی بغداد والے کے چاہنے والوں کی پہچان ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے, جو بھی مسئلہ ہوتا ہے چاہے وہ
जिन्नात से टकराना हो, हालात से टकराना हो या हुकूमत से टकराना हो, खुदा की कसम सबसे पहले जो सर पे कफन बांध के जमात आगे आती है ना, वो उलमा की जमात होती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के एक एक कौल, एक एक हुक्म को अपनी निगाहों के सामने रखें। अगर ये हमसे कहें खड़े हो जाओ तो फिर हम फिक्र न करें और सोचें नहीं इसने कहा क्यों है, समझें कि अगर कहा है तो कोई फायदा ही होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि इस बीच में जितने भी नामूस रिसालत पर होने वाले हमले हैं या जो भी बकवास हुजूर की इज्जत और नामूस के खिलाफ की गई है, उनमें सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ उलमा की जमात नजर आई है। उलमा की जमात नजर आई है। आपसे इतनी गुजारिश है, इलेक्शन लड़ो, पूरी जिंदगी हो गई प्रधानी और ठेकेदारी चलाते चलाते, इस बार इतना कर लेना जैगम भाई, कोई भी वोट मांगने आए ना उससे कह देना विकास न कर हमारा, जितनी सबको लाइट मिलेगी उतने हमें मिल जाएगी, जितने टूटे रोड पे दुनिया चलेगी उतने पे हम चलेंगे। रह गई हाईवे की बात तो न तुम फ्री गुजरते हो ना हम फ्री गुजरते, पैसा तुम देते हो पैसा हम देते। इस बार इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, हुजूर की नामूस के नाम पे होना चाहिए। हमारा वोट उस शख्स को जाएगा जो हमारे नबी की नामूस की हिफाजत की बात करेगा। ये ख्याल रखिएगा, हमारा काम लड़ना नहीं है इलेक्शन, ना हम आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारा रिश्ता हुजूर से जितना मजबूत से मजबूत हो सके उसे मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। समझेंगे ना इंशाल्लाह। बाकी कोई भी बंदा आके कहे कि भाई मैं क्या क्या मिलता है, बेरोजगार भत्ता है, कॉलोनी, ये तो नहीं बैठे हो, चुप बैठे हो, है ना, कॉलोनी ये 70 वाली 3.5 लाख वाली दिलवा देंगे, लात मार देना। कहना बिना छत के तो गुजारा हो सकता है, बिना महबूब रब के गुजारा नहीं हो सकता है। यही हमारा ऐलान रहना चाहिए। अगर हमारा वोट चाहिए तो विधानसभा में, संसद में हमारे नबी की नामूस की बात उठाओ, हमारे नबी की अजमत की बात करो और उन जबानों को ताले लगवाओ जो मेरे नबी के खिलाफ बोलती है। वोट नहीं, हमारा लहू भी तुम्हारे लिए होगा। और अगर आप ये नहीं करते, सिर्फ 5 साल की सूखी रोटी का लालच लेके आए हो तो मुंह पे मार देंगे तुम्हारे, इसलिए कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम अजमेर वाले के टुकड़ों पे पलते हैं। हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, अजमेर वाले के टुकड़ों पे पड़ते हैं। और तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें 5 साल पाल सको, तुम 5 सेकंड हमें नहीं पाल सकते हो। ये सिर्फ रब्बे कायनात की जात है जो पूरी कायनात को पाल रहा है। ये सिर्फ उसी की जात है जिसने कायनात को पाल रखा है। तो अपने उलमा का साथ देंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। हमें सबसे बड़ा झूठा दलाल बन के आता है इलेक्शन में, वो आके कहता कसम से चचा मेरा भरोसा करो, तुम्हारी गली पक्की जरूर होनी है। वो बिछने वाली ईंट से तो पक्की नहीं होती, वो गिरने वाली ईंट से जरूर पक्की हो जाती है। तो भरोसा नहीं, जरूरी है कि हम रोडों पे चले। वो कहा था ना किसी ने, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? जब हुजूर की इज्जत नहीं रही तो फिर हम रोडों का क्या करेंगे यार? तो मुबारक हो तुम्हें पक्के महलात, हमें कच्ची झोपड़ी में हुजूर की इज्जत प्यारी लगती है। तो हमने आज तक अपने उलमा को नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में हमें ये दिन देखने मिलेंगे, ये दिन देखने मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत में जब हुजूर हसन को आवाज दें तो पहले मदीने का हसन आगे आए, फिर बरेली का हसन आगे आए, फिर सारे गुलाम पीछे पीछे चले आए, है ना। लाजिम ये नहीं है कि 4-5 दीवान पढ़ के निपटो तभी हसन बनो, क्या बात है? 3-4 कलाम पढ़ के हटो तभी आपका नाम सना खानों में आएगा। याद ना हो तो याद कर लो, जब मिस्र में हुस्ने यूसुफ की बोली लगी, अमीरों की तिजोरियां खुली, लोग हीरे जवाहरात लेके हुस्ने यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, वहीं पे लोग तमाशाई बन के खड़े थे। उसी भीड़ में 5 शेर रूई का काता हुआ धागा लेकर के एक बूढ़ी भी आई थी, उसने हटो बच्चों का शोर बुलंद किया। नौजवानों ने कहा कौन है? जब मुड़ के देखा, बूढ़ी की गोद में रूई का काता हुआ धागा था, उसको दबा के बगल में आ रही है। नौजवानों ने कहा था दिखता नहीं भीड़ कितनी है, हम भी तो तमाशाई हैं। उसने कहा तुम तमाशाई हो, लेकिन मैं खरीदार बन के आई हूँ, मैं खरीदार बन के आई हूँ। तब देखने वालों ने कहा था, हंसे क्या खरीदने आई है? कहा जिसको सारे अमीर खरीदने आए हैं उसे मैं भी खरीदने आई हूँ। और से सुनिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वाकया तो सबको पता होगा क्योंकि यूसुफ जुलेखा की मोहब्बत बुढ़े बुढ़े को पता है। क्या बात है, भले ही मसला अपनी बीवी से ना हो कतई, है ना। तो ये दास्तान सभी को मालूम, लेकिन ये बीच बीच में शेर पढ़ने का मसला बता रहा हूं। आधा मिसरा तुम पढ़ो, आधा हम पढ़े, उस बात को मैं समझा रहा हूं। उसने कहा था तू किधर? उसने कहा जहां अमीर आए हैं वहां हम भी आए हैं। कहा अपनी औकात देख और मिस्र का सौदा देख, अपना धागा देख, दीगर खरीदार देख। अजीजे मिस्र के हीरे जवाहिरात सारे चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यूसुफ के हुस्न का सानी तक ना बन सके हैं, हम पल्ला नहीं हो सके हैं। तू खरीदने आई है। उसने कहा हट पगले, जाने तो दे, लाइन में लगने दे। कहा लौट जा
की, कम से कम इतना तो हो जाएगा। खुदा कयामत में जब यूसुफ के खरीदारों को इज्जतें अदा करेगा तो जहां अजीज खड़ा होगा वहीं पे ये गरीब बूढ़ी भी खड़ी हो जाएगी। सुभान अल्लाह बेशक। जरूरी तो नहीं है ना कि हम 2-3 दीवान पढ़ के तभी आशिक बनेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, हल चलाओ फिर भी ये पढ़ो सबसे आला वो औला हमारा नबी, खेत में दाना डालो फिर भी ये कहो सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे। आप जो काम करो हर काम में मुस्तफा की नात पढ़ते रहा करो, नात पढ़ते रहा करो। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। तो रिश्ते मजबूत करें, रिश्ते मजबूत करें। मैं अर्ज कर रहा था सरकारी गौसे पाक, पूरी दुनिया में बगदाद वाले की 11वीं का तज़किरा है, कहीं 17वीं है, कहीं 11वीं है, कहीं 27वीं है, कहीं 26वीं है। यही मेरे बगदाद वाले का चर्चा है। मैं थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, कड़वी दवा मैं बड़े अच्छे माहौल में भी नींद घोल देता हूँ, मगर याद रखें दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जिसे कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर वो टेबलेट और खुराक से नहीं ऑपरेशन से ठीक हुआ करता है। दुआ करें अल्लाह हमारी बीमारी खुराकों से ही खत्म कर दे। हम सब अपने बारे में ये बात करते हैं। सरकारी बगदाद जो आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और पैदा हुए फिर भी वली, और ऐसा वली ऐसा वली ऐसा वली जिसने माँ की गोद में बैठ के कहा था माँ कायनात पे माँ का एहसान होता है, तुझ पे मेरा एहसान है। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कौन सा? फरमाने लगे अम्मी एक एहसान तो तब किया था मैंने जब आप घर में अकेली थी और एक फकीर आया था, उसने भीख मांगी थी, आपने पर्दे की आड़ से ना उसको जब भीख देना चाहिए, आपके हाथ के सोने के कंगन देख के उसकी नीयत बिगड़ी और वो हाथ के कंगन छीनना चाहता था। आपने आवाज दी थी यार मेरी मदद फरमा। अम्मी क्या हुआ था? कहा बेटे शेर आया था, फाड़ के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी वो कोई जंगल का शेर नहीं, तेरा ही अब्दुल कादिर जिलानी आया था। है ये शान बगदाद वाले की है, ये शान बगदाद वाले की है। तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए हैं और हमारे सरों के ताज बैठे हैं। एक बात कहूं, करामत ये इस्तिकामत का अजर होती है। जो हम शरीयत पर मजबूती से पाबंदी से अमल करते हैं ना, उसके इनाम में जो रब की तरफ से तोहफा मिलता है उसे करामत कहते हैं। हमने पूरी जिंदगी बगदाद वाले की करामतें सुनी और अल्लाह करे सुनते रहे, लेकिन साथ में इस्तिकामत पे भी गौर करना चाहिए था, उनकी जिंदगी को भी देखना चाहिए था। उन्होंने जो जिंदगी में मुजाहिदे किए और जिन मराहिल से वो गुजरे वो भी याद होना चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि बगदाद वाले को मुर्गा पसंद था, लेकिन ये भी तो याद होना चाहिए। फरमाते जब मैं पढ़ने के लिए गया ना, मैंने एक एक महीने की भूख काटी है। आप इससे इल्म और उलमा का अंदाजा लगाइए। बगदाद वाला कहता मैंने एक एक महीने की भूख काटी, और कहते ये हालत होती थी कि लोग मुझे मुर्दा समझ लेते थे, गुस्ल भी देते, कफन भी पहनाते। जब जनाजे में लेटा के नमाज की तैयारी होती मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के उठ के बैठ जाता था। इन मराहिल से भी बगदाद वाला गुजरा है। हमें सिर्फ मुर्गे याद है, हमें ये याद है कि उनको मुर्गों को जिंदा करना आता है, ये भी तो याद करें। फरमाते हैं कि हम घर से चले थे, माने 40 सिक्के दिए थे, 40 सिक्के। मैं जैगम भाई आज भी यहाँ के अटक जाता हूँ कि जब चले तो माँ ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और पैदा होने के बाद भी वली ही है, उससे माँ कह रही है झूठ ना बोलना। इसमें क्या राज था? समझ में बात नहीं आती, आंखें अटक जाते। फिर खुद थोड़ी बहुत बगदाद की तरफ से रहनुमाई होती है, आवाज आती है पागल सिर्फ अब्दुल कादिर को न देख, अब्दुल कादिर की मां को भी तो देख। यहां मसला अब्दुल कादिर का नहीं, यहां मसला मां का है, मां का है। अम्मी ने क्या कहा था? अब्दुल कादिर 2 भाइयों, बाप ने 80 सिक्के छोड़े, 40 तुम ले जाओ, 40 भाई के लिए छोड़ दो, लेकिन इसको संभाल के लेके जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। याद रखिएगा माँ माँ होती है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो। कहती है मैं साथ नहीं आऊंगी, मुझे घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है, भाई भी तुम्हारा छोटा है, उसको भी देखना है, ये आप हिफाजत से लेके जाइएगा। माँ ने सदरी में रख के सिली, फिर कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपने हाथ में हाथ दिया, अम्मी झूठ नहीं बोलेंगे। आए निकले, डाकुओं ने लूटा, सबको पता है, बारी सरकार बगदाद की आई, तुम पे क्या है, तुम पे क्या है? फरमाने लगे मुझ पे भी 40 सिक्के।
किधर है? सदरी में। कहा मिल तो नहीं रहे? कहा अम्मी ने सिल दिए। कहा दिखाओ ना। सिलाई तोड़ी, खन खन सिक्के गिरे। हैरत होती है, सिक्के गिरे ना। सरदार ने कहा था अजीब बच्चा है, झूठ बोल देता, ना कह देता हमें तो मिल ही नहीं रहे थे, झूठ बोल देता, सिक्के बच जाते। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता, माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। बगदाद वाला कहता है माँ की जबान पर 40 तो क्या ऐसे 1000 सिक्के कुर्बान किए जा सकते हैं। आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जिस बगदाद वाले की दुनिया 11वीं खा रही है, जिसका सदका खा रही है, जिसके नाम पे हम लोग पल रहे हैं, उसने माँ का एहतराम किस कमाल का किया है। आप जरा सोचे तो सही, आज कागज के सिक्के होते, कागज के पैसे होते हैं, कल सोने के पैसे होते थे। हम सोने के नहीं, कागज के पैसों के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं। बगदाद वाले ने सोने के सिक्के छोड़े हैं, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा है। ओ दुनिया वालों, ख्याल रखना, याद रखिएगा, जो तरक्कियां, जो बरकतें, जो अज़मतें सजदे और रुकू और सुजूद और क़याम से नहीं मिलती है, जो दिनों रात के मुजाहिदों से नहीं मिलती है, रब ने माँ को वो कमाल बख्शा है कि जो तरक्कियां 12 बरस की इबादत से नहीं, वो माँ की दुआओं से खुदा अता फरमा दिया कर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते गौसे पाक, सुभान अल्लाह। हम कितने अच्छे लोग हैं। बगदाद वाला कहता मेरी माँ का वादा टूट जाता। हम खाने पे बैठे जैदम भाई, ये सबका हम सबका हाल है, खाने पे बैठे, अचानक फोन की घंटी बजी, सरकारी प्लेट, अम्मा कहते रुक बेटे खाना खा जा। माँ, पुराने लोग ना एक बात कहते हैं कि कभी आगे खाना छोड़ के नहीं उठना चाहिए। ये बड़े बूढ़ों की बातें हैं और काफी हद तक सच होती है इनकी बातें, इसलिए कि इन्होंने पढ़ करके नहीं, इन्होंने देख कर और सीख करके कहा है। बेटा उठा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटे खा के जा, खा के जा। हम कहते नहीं बस अभी आ रहा हूँ। माँ बैठी रह गई, हम आ गए। क्या कर रहा था यार? खाना खा रहा था, हाथ भी नहीं धोए, हाथ तो धो लेता। कम ही पीछा करती रह गई। कहा क्या कह के आया? कहा माँ को बेवकूफ बना दिया। 2 मिनट लगे। नादान, माँ को बेवकूफ न कह, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी जिस बीमारी को मशीनें, चेकअप और बड़ी बड़ी लैबों में ले जा करके परखा और जांचा जाता है ना, माँ नजर डाल के बेटे की उस बीमारी को पकड़ लेती है। आज भी माँ औलाद के लिए सबसे बड़ा तबीब होती है, सबसे बड़ा हकीम माँ होती है। और समझने की कोशिश करें, दोनों बातें आ जाएंगी। बहुत सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला, आप कहीं जा रहे हैं, दरियाए नील आपको पार करना था, आपने देखा एक शख्स ना खड़ा हुआ किनारे पे रो रहा है, किनारे पे खड़ा रो रहा है। आपने पूछा बात क्या है? उसने कहा हुजूर दरिया पार करना था, किराया नहीं है, और ना कश्ती वाले ने ना मार के भगा दिया। आपने वहीं खड़े खड़े शागिर्द को हुक्म दिया, कहा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ला। शागिर्द गया, ला के थैली दी, हुजूर ये ले। आपने वो ली, कश्ती वाले को दी कि ये ले। उसने कहा हुजूर ये किस चीज़ की? फरमाने लगे इस गरीब को तूने इसलिए दरिया पार नहीं कराया कि इसके पास किराया नहीं था, ये सारे ही रख ले। आज के बाद कोई भी गरीब आए ना, उससे किराया ना मांगना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार कराते रहना। ये उन लोगों के लिए जिन्हें हम ये कहें कि उनके लिए अजनबी, जिनसे खून का रिश्ता नहीं, उनके लिए इतनी मेहरबानी। आज ना 11वीं तो हम करते हैं, बुरा मत मानना, 11वीं तो हम करते हैं, लेकिन 11वीं पे सिर्फ हमारा ही हक होता है और किसी का नहीं। हम 1100 रुपए का जर्दा बनाएंगे, लेकिन सिर्फ खुद ही खा लेंगे। मेरे भाई, कभी ऐसा भी तो कर कि तेरे घर में 11वीं के 11 रुपए की न्याज हो ना, तो पहले अपने बच्चों को नहीं, जरूरतमंदों को खिला, बच जाए फिर अपने बच्चों को खिला, फिर देख बगदाद वाले का करम होता है कि नहीं। लोग कहते हैं हर साल करता हूं, 11वीं मुसीबतें पक्की आ रही हैं, फिर भी बराबर 1100 रुपए जेब में पड़े ना तो निकालेगा 11 ही रुपए। भाई किस किताब में लिखा 11 ही रुपए दो? कौन है ये क्यों तो कह रहा है 11वीं की निस्बत से 11 ही दिए जाते? तो 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है, 11,000 में भी 11वीं की निस्बत है, और 11 लाख में भी 11वीं की निस्बत है। तो 11 ही रुपए क्यों? सस्ता छूटना चाह रहा है। जिनकी 11वीं कर रहा है उन्हें तेरी जेब का भी पता है, तेरी कुटिया का भी पता है। उन्हें पता है 1100 पर्स में रखे और 11 जेब में रखे थे, 11 ही निकाल के दिए। माफ कीजिएगा, कुछ जगहों पे चलन है 11वीं के दिन चंदे का, होता है कि नहीं? मस्जिदों में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। सैयद साहब किबला 10 रुपए तो भेजता घर से, 11 रुपए, और शहर में जाके कहता लड्डू ही लियो। एक लड्डू कितने का? कम से कम 5 रुपए का एक लड्डू। इतने छोटे 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 सारे सैंपल मस्जिद के गेट पे। रुपए दिए 10 11 और लेने बच्चे आगे 5, छठा अब्बा, और फिर कह रहे अच्छा 11वीं के पैसे मान लिए, लड्डू पूरे नहीं पड़े। खुद बता, 10 दे के 5 लेके जा रहा है। अब इसमें करामत क्या करेगी?
یہ تو کھلے عام لوٹ ہے. یا تو یہ کہ جتنا پیسہ ہے وہ شے منگاؤ جو سب کو مل جائے. ضروری نہیں کھانا بھی لڈو ہی ہے, دے گا بھی 11 روپے اور بچے سارے لائے گا. لڑائی کئی اماموں کی چھٹی ہو گئی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, ایسے بھی ہوا ہے. یہ کمیاں ختم کریں. ایسا بھی ہوا ہے کوئی آیا کہ 5 روپے کلن نے دیے تو وہ 5 روپے کا اعلان ہو گیا. بعد میں نہیں جی کلن نہیں, میں نے ملن بولا تھا. تو پھر وہ ملن کے 5 چڑھ گئے. تو 5 روپے ایک ہی آئے اعلان. کتنی بار ہو گیا اعلان؟ بولے ذرا, آپ بول سکتے ہیں نا, منہ میں گٹکا تو نہیں ہے کسی کے. بغداد والے کی محفل ہے, منہ صاف کر کے بیٹھا کرو ورنہ ایسا تھپڑ ماریں گے قیامت تک نسلوں میں دانت نہیں جمیں گے. کیونکہ علامہ کہہ رہے غوث وتی کا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. محفلوں کا ادب کیا کرو. بغداد والے کی محفل ہے, ہلکے میں مت لینا. تقریر کے بیچ میں چیل بول جائے پٹ سے نیچے ختم. اور پھر جب جلال سے باہر نکلے, اسے کیا ہو گیا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ چپ کیوں نہیں ہوتی ہے. کہ مر گئی, کہا فرمایا کم باذن اللہ. تو مسئلہ یہی ہے. تو یہ نہ کیا کریں, یہ بالکل نہ کیا کریں. 2 بار اعلان ہو جا تو کچھ اتنے بڑے فتین کاپی لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہاں سب لکھ رہا کتنے اعلان ہوئے, اور پھر آ کے کہہ رہے آپ کتنے آئے تھے امام صاحب پیسے. امام صاحب نے کہا 713 روپے. کہہ رہا ہوں ایک بار اور جوڑ لو. کہہ رہا نہیں بھائی 713 یہ پورے ڈبے میں رکھے ہیں, میں نے 1 روپیہ جیب میں بھی نہیں ڈالا, سارے پلاسٹک کے ڈبے میں. کہہ رہا نہیں نہیں مجھے پتا ہے, کیوں تو بغداد والے کی چوکھٹ سے اٹھ کے آیا ہے, تجھے پتا ہے. کہہ رہا یہ دیکھو کاپی. پھر نکالا اس نے نام اعمال اور اپنا جرم ڈال دیا امام کی کھوپڑی. 10-5 ادھر ادھر ہو گئے. اگر یہ نام بھول گیا تو کہہ رہا برکت ہے امام صاحب کے اعلان میں, نام کم تھے پیسے زیادہ نکلے تو پھر کرامت ہو گئی امام کی. اور اگر امام نے کوئی نام دوبارہ بول دیا اور روپیہ کم نکلا تو پھر آفت آ گئی امام کی. تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں, یہ رویے غلط ہے. اللہ نے توفیق دی حسب حیثیت 11ویں کر, اور پھر دیکھ اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. نام کے لیے نہیں, کام کے لیے 11ویں کریں. کام کے لیے 11ویں کریں, نام کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں. کہیں بھی چلے جاؤ آ کے نا جو 11ویں کراتا ہے ایسا بیٹھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور لگا ہے سید صاحب آئے. ہاں ایسا حضرت اعلیٰ صدری پہن کے پگڑی باندھ کے, اتنے ہم پہ بھی کپڑے نہیں ہوتے جتنے اس تھلوے پہ ہوتے ہیں. کون ہے؟ یہی ہے مالک. وہ چاہتے میرے خطبے پڑے جائیں. نہیں ایسا نہیں. بغداد والے کے نام کا لنگر ہے, آقا بن کے نہیں, نوکر بن کے کھلا. نوکر بن کے کھلا, تماشا نہ بنا. جب بھی کوئی پوچھے کیا گئے, اپنا کچھ نہیں, سارا ہی بغداد سے آ رہا ہے. سارا ہی بغداد سے آ رہا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے, میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا دلوں میں کشادگی لائیے. کشادگی, دل بڑے تنگ ہو گئے. 11ویں بھی کرے گا نا تو اپنے بال کو بانٹ دے بیٹھا کے لائن سے, تاکہ بانٹنے کا بھی مزہ آ جائے اور گھر کے گھر میں بھی رہ جائے. ہاں باہر بھی نہ جائے اور شور بھی ہو جائے, لاؤ بھی مجھے دے دو, مجھے دے دو. پورے مزے گھر میں لے رہا ہے. یہ نہیں, دلوں میں جگہ پیدا کرو. 11ویں کے علاوہ بھی اگر آپ کے دسترخوان پہ کسی کے لیے جگہ ہے تو سمجھ لینا رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. رحمت کے دروازے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے, ہم نا کنجوس طبیعت ہو گئے. ڈاکٹر کو 1 لاکھ دیں, 5 لاکھ دے دیں گے, اپنے سگے رشتہ داروں کو 5 پیسے دینے تیار نہیں. ڈاکٹر کو 5 لاکھ بھی دے دیں. ایک بندے کو بھی بلڈ کینسر ہوا, ناپاس کر دیا گیا. اس کے بعد بہت ساری پراپرٹی تھی, اس نے سوچا لگاؤ آگ ابھی سے. ویسے 2.5 مہینے کا وقت ہے ہمارے پاس جینے کے لیے. بہت غور سے سنیے گا. کتنے دن کا؟ 2.5 مہینے کا. جب آیا نا اس نے ساری سمپتی بیچ دی. 2.5 مہینے تو جینا ہی ہے. آیا اپنے وطن آیا. جب رشتہ داروں میں خاندان میں آیا نا تو اپنے بچوں کو پتا چلا کہ باپ نے بزنس ختم کر دیا, سب کچھ بیچ ڈالا ہے. اپنے بچے نا باتیں کرنے لگ گئے. کیا کرنے آیا؟ اس کو نا پہلی رات میں اتنا بوجھ محسوس ہوا. اپنوں نے اس کے خلاف ایسی باتیں کی, اسے لگا کہ وہ اپنوں پہ نہیں زمین پہ آپ ایک بوجھ بن کے رہ گیا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا کل پھر جانا ہے. ٹکٹ نکالا, نکالنے کے بعد پھر واپس پلٹنا تھا اسے کہ ایسے اپنوں سے تو وہ غیر بہتر تھے جو کم سے کم تانے تو نہیں دیتے ہیں. کہیں نہ میری 2 وقت کی روٹی بھاری لگ رہی ہے. یہ سوچ کر کے اس نے ٹکٹ نکلوایا. اب وہ اپنوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہا ہے. سوچا رات کہاں گزاروں, رات کہاں گزاروں. اس خیال سے وہ بے دیوانہ پن میں باہر ادھر ادھر ٹہلتا رہا. موسم چونکہ بارش کا تھا,
जब बारिश का मौसम देखा, बारिश के मौसम में एक मकान की छत के बगल में छुप के बैठ गया। उस मकान के अंदर से खटखट की आवाजें आती रही। जब बहुत देर तक आवाज बर्तनों की आई, उसने जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से यतीम बच्ची निकली। उसने कहा जनाब क्या बात है? कहा आप यहाँ कैसे? कहा बच्ची पूछना ये था, बात क्या है पूरी रात बर्तन बजते रहे। बच्ची ने आंख में आंसू भर के कहा हम यतीम हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है, जब से बाप गया है कोई देखने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा आपकी नींद उड़ाना मकसूद न था। जब बारिश आई है हमारी छत इतनी जगह से टपक रही थी कि बर्तन कभी यहाँ लगाते थे कभी वहां लगाते थे। हम ठहरे गरीब लोग, इतने बर्तन भी न थे कि एक वक्त में सब जगह लगा दिए जाते। बच्ची ने रो के इतना कहा, उसको ख्याल आया, जब नजर उठा के देखा वो बच्ची कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी भांजी थी। रात के सन्नाटे में सगी भांजी को उसने देखा, पहचान तो यूं नहीं पाया था क्योंकि परसों से परदेश काटा था, कभी अपनों में आने की फुर्सत नहीं मिली थी। फिर ख्याल आया सगी भांजी है, कोई सर पे साया नहीं है। उसने बहन के अंदर आने की इजाजत मांगी, अंदर गया, घर टपक रहा है। उसको ख्याल आया 2.5 महीने की जिंदगी है, इतनी दौलत का क्या करूंगा, क्यों ना ये काम किया जाए, कम से कम अपनों के लिए ये मकान बना जाऊं। ये सोच करके उसने अगले दिन बुलाया तामीर करने वालों को, मेहमान बुलाए गए और उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, मेरे पास 2.5 महीने का वक्त है, उससे पहले पहले मेरी बेवा बहन का मकान बन जाना चाहिए, यतीम भांजियों का इंतजाम हो जाना चाहिए। तारीख का वाक़ है, 2.5 महीने का वक्त डॉक्टरों ने दिया है, दिनों रात काम चलता रहा, 6 महीने हो गए, मौत नहीं आई है, जिंदगी बेहतर होती जा रही है, काम भी बंद नहीं हो रहा है। जब 7 महीने गुजर गए, ख्याल आया कुछ पैसा परदेश में रह गया था वो भी लेके आ जाता हूं ताकि अपनों पे लगा दूं। जब वतन से बेवतन हुआ, परदेश गया, डॉक्टर से मुलाकात हुई, कहा यार तू जिंदा कैसे है, तू तो लास्ट स्टेज पे था, तुझे मर जाना चाहिए था। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ 2.5 महीने से ज्यादा तेरी जिंदगी नहीं है। कहा मैं कल भी ठीक था, आज भी ठीक हूं। जब चेकअप किया गया कोई बीमारी नहीं थी। कहा कौन से दवा की है? उसने कहा तुम्हारा इलाज दुनिया के तबीब करते हैं, हमारा इलाज रब के हबीब ने कर डाला। उसने कहा कि मैं गया, मेरे महबूब ने फरमाया कि अपनों का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो। कहा मैंने उनका घर बनाया, रब ने मेरी जिंदगी बना डाली है, खत्म कर दी है। लेकिन बेटी तो बेटी होती है, लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तब का पलट देता है, कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है, कभी उसकी साथ को ना भूलना, अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना, कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक मूंछ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटी को नहीं देखा, इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई तो चेहरे पे नजर पड़ी ना, जैसी नजर पड़ी देखा तो कुछ और नहीं, एक बूढ़ी औरत को बुलाया, कहा अम्मा, कहा हाँ, कहा फला जो बच्ची है ना उसके लिए मेरी शादी का पैगाम ले जा। क्या कहा? क्या ले जाना है? शादी का पैगाम ले जा। जब इतनी बात कही ना, बुढ़िया ने कहा क्यों? कहा अम्मा बात यह है कि वो रास्ते से गुजर रही थी, मेरी नजर उसकी नजरों पे पड़ गई और मैं उसकी आंखों पे फिदा हो गया, मुझे उससे निकाह करना है। जब वो बूढ़ी पैगाम लेके आई ना और बच्ची से कहा बेटी एक नौजवान है, वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया है, तुमसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा मां उसने मेरी आंखें कहां देखी? उसने कहा उसने बताया कि तुम चौराहे से गुजर के जा रही थी तो उसकी नकाब पलटी, हवा से तुम्हारी नकाब उड़ी और उस जवान की आंखें तुम्हारी आंखों से टकराई। कहा बस वो आंखें देख के फिदा हो गया। बच्ची ने जानते हो क्या कहा? उसने ये नहीं कहा चलो एक फॉलोवर बढ़ गया, हाँ उसने नहीं कहा मेरा चाहने वाला बढ़ गया। कहा अम्मा ठहर अभी आती हूं। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, कपड़ा डाला, कहा मां ये लेके चली जा। बेटी इसमें क्या है? कहा इसमें मेरी आंखें हैं। कहा क्यों? कहा ये आंखें उस जवान को जाके दे जिसका दिल इन आंखों पे आ गया है। इतना सुना, बच्ची के जो आंखों से खून चेहरा लहुलहान, बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा माँ जैसी तूने बताया ना करके मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों पर निशाना पड़ गया था, उसने मेरी आंखें देखी हैं, मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी अगर कयामत में खातून जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है, जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आंखें उसे मुबारक हो, खातून जन्नत की मोहब्बत मुझ कलीस को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो जो है ना सारे लोगों की, तो भाई ये कंडीशन एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो, अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात,
सीधी सी बात, ये हालात हमने बना तो रिश्ते हो रहे हैं, उसके अलावा नुकसान आप देखें, बुरा ना मानिए। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं, बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती है ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है। इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता, जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है, खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की चूतियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये हमारे रवैयों की खराबियां हैं, ये हमारी तरबियत की वो बत्ती तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता है, और जब तक पूछना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से, तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकले। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं, जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता है 10 दूंगा, रिश्ता करा। 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। झूठ ना बोला करो। अगर मिडलर कोई बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता, इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा, कह रहे अरे यार 10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहे। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा 10 दे रहे, 12 वहां से मिल रहे, 15 वहां से मिल रहे। हैरत आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे चेहरा बन जाता है, 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना ताबीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चचा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता न कराना। ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रहे। खुदा की कसम, जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदीने की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। 15 मिनट बचे, इसे नारों में लगा दो या तकरीर में लगा दो। खैरियत है सारे? चलूं आगे तो कह देगा रसूल अल्लाह और जोर से। कुर्बान जाए तुम्हारी जवानी के कसम से, है ना? पबजी कितने लोग खेलते हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा। कई तो पागल हो चुके और कई पागल होने बाकी। जहां देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे, है ना? मेरे बच्चों कान खोल के सुनो, जो आज पबजी खेलेंगे कल भीख मांगेंगे। ये लिखो, तावीज बना के जेब में रख लो। जो आज तालीम के वक्त में गेम खेलेंगे वो कल जवानी में भीख मांगेंगे। जो आज कलम चलाएंगे कल कंप्यूटर उनके इशारों पे नाचेगा। हमें अपना वक्त तालीम को देना, पढ़ाई में देना। सेहतें कई बार देखा 12वीं का झंडा लिए ऐसे हिला रहा और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया। ये जवानियां हमारी। सही से आदमी थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा और कह रहा वही बनेगी बाबरी मस्जिद। तुझसे अपनी मस्जिद तक जाया ना जाता, बाबरी मस्जिद बनागा। ये कंडीशन हमारी कौम की है। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, कभी बीमार नहीं हो। 11 बजे तक 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, 12 बजे सो के उठ रहा।
12 बजे फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, बाबा ताबीज दो। तो ऐसी पाखंडी बाबा बैठा है, इतना ढोम घाटी है कि वो कह ही नहीं रहा गलती क्या है। ताबीज पे ताबीज, इसे सोफे में रख, इसे तकिए में रख, इसे गिलाफ पे लगा, इसे पेड़ पे लटका, इसे तराज में लगा, इसे शटर में लगा, इसे बाजू में बांध, इसे गले में लटका। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा, ताबीज तो क्या पूरा पीर गले में लटका ले, कुछ नहीं होगा। खुदा को राजी कर ले, तेरी आंख बाद में खुलेगी। रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले कर दिया जाएगा। जो रज़ाक है उसे भूले बैठे हो, जो चोर है उसे बनाए बैठे हो। सब कुछ बदलो यार अपने तरीके, हम तो मुसलमान हैं। हम जोर से हम मुसलमान हैं। तो देखो हालात कंडीशन ऐसी है, तवज्जो है सारे लोगों की। जवान है आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, खाली लंगर के सहारे आए कि घर से भी कुछ खा पी के आए? खा के आए तो कम से कम इतनी आवाज तो निकालो कि लगे कि पेट भर के बैठे। कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई तुम तो मेरे कान पे बोल रहे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये अंदाज से तो बड़ा प्यारा है। तवज्जो है साहब, नींद तो नहीं लग रही अभी, थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस बर्दाश्त कर ले। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस यही समझ के कड़वी बातें समझ के बर्दाश्त कर ले। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये रिश्तों की कंडीशन है। 10-10 लाख में लवारे बिक रहे हैं, और बिकने वालों को मैं कुत्तों के पिल्ले से भी ज्यादा अहमियत नहीं देता। नुकसानात बहुत है। तो जरा सा चमकता लड़का देखा, 10 दे देंगे, कराओ बात। लड़के वाले के भाव हो गए 10 मिलने, इतने तो मेरी जमीन में भी ना बढ़े। 5 बीघे ली थी, अभी वही 8 की हुई है, 7 की ली थी। और लड़के में डायरेक्ट 10 लाख का नहीं जी, वहां भी नहीं करनी है। तो लड़की वाला फिर कह रहा है चलो 15 दिलवा दियो। मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगियां पैसे से खुशी के साथ नहीं गुजरती हैं, जिंदगियां प्यार से खुशी के साथ गुजरा करती हैं। अगर पैसा खुशी के लिए काफी होता ना, तो आज आप देखें जितने एक्टर्स हैं, किसी के 6 निकाह हो गए, किसी के घर में 17 निकाह के बाद कोई आके 18वें निकाह में बैठी है, जबकि पैसा मुंह छूटे। पता ये चला दौलत में सुकून नहीं, मदीने वाले की सुन्नत में रब ने सुकून रखा है। पैसे वाला ढूंढ रहा 10 लाख 20 लाख, और पता ये चला कि बिक गई सारी, 8 दिन में लगे बिक गई। क्योंकि लल्ला बस कहते मैंने पता चला था कि बियर पी रहा, तो क्या बियर थोड़ी, वो जूस पीवे, जूस बता रहा बियर को, शराब है ये, हराम है ये। मौलाना जूस है ना, मौलाना को ना पता। बेटे जितने ब्रांड तू जानता है ना, वो कहां से बनते हैं ये सब मौलाना जानता है। ये कान खोल के सुन लेना कि मौलाना को जूस बना के उल्लू ना बनाना। मौलाना इस जूस की पूरा मिक्सर जानता है ये कहां से बना। तो कह रहे जूस पी रहा, शादी से पहले जूस पी रहा था, आप चुपके से कह रहे रात को ना कोई तावीज दे दो, पौवा पी के पड़ा था, बिक गई सारी, रह गई धनी की धनी दौलत। रिश्ते अगर तलाश करने गए, अमीरों की चौखट पे नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके तलाश कर। आप कहेंगे वहां कैसे, गारंटी है मेरी जा, अगर तुझे बेटी का निकाह करना है ना,